nature of poverty. This means how the poverty can be calculated or how the poverty can be found out. So there are basically two ways. Through which poverty can be found out or poverty can be classified. One is absolute poverty, and second is relative poverty. Absolute poverty and relative poverty. We will be discussing about absolute poverty today. Now, what is meant by absolute poverty? What is meant by absolute poverty? Now, absolute poverty means if a person is not able to satisfy his basic needs, then he will be considered absolutely poor. जो कोई मानस પોતાની basic needs પણ satisfy ના કરી શકે તો એને absolutely poor કહેવાય. That person will be considered as the absolutely poor. But to find out this, government give a criteria, and that criteria is known as poverty line. This criteria is known as poverty line. Now, what is meant by poverty line? Poverty line means it's a minimum normative level income or expense required to satisfy the basic need. It is a minimum normative level of income or expenditure which is required to satisfy the basic need of food. Traditional concept. So poverty line is the criteria through which we can find out that whether a person is absolutely poor or not. And if a person's income is less than this level, then he will be considered as BPL. That means person living below poverty line. He will be considered as the BPL person. That means government decides one criteria of income and expenditure. If a person's income is less than that, then that person is considered as the person living below poverty line. If the person's income is below than that level, then that person is known as a person living below poverty line. So એને poor person કહેવાય. તો એને person living below poverty line કહેવાય. So there is a history of Indian poverty line. That what was the criteria of poverty line earlier and what is the criteria now? As I explained, poverty is a relative concept. Poverty कैसा concept है? Poverty relative concept है. It changes along with the time and situation. जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, उसी तरीके से पॉवर्टी का क्राइटेरिया भी चेंज होता है, पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया भी चेंज होता है. और इसी क्राइटेरिया को देने के लिए 1951 में, in the year 1951, planning commission got established. In the year 19, not to just give the criteria, but in the year 1951, planning commission got established and it gave responsibility to ICMR. Now sir, ICMR means what? Indian Council for Medical Research. आज जो भी कोरोना की वैक्सीन होती है, अगर उसको
किसी भी स्टेज के ऊपर सर्च करना है और किसी भी स्टेज को आगे ले जाना है तो उसके लिए ह्यूमन ट्रायल करनी होती है। और ह्यूमन ट्रायल करने के लिए परमिशन कौन देता है? ह्यूमन ट्रायल करने के लिए परमिशन देती है आईसीएमआर। और आईसीएमआर को बोला प्लानिंग कमीशन ने आईसीएमआर को बोला कि हे आईसीएमआर, तू अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझती है तो मैं बोलूं उतना मुझे करके दे। आईसीएमआर ने बोला बोलो क्या करना है। प्लानिंग कमीशन ने बोला कि मुझे ये बता कि अगर किसी भी पर्सन को अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करनी है, किसी भी पर्सन को अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करनी है तो उसका डेली कैलोरी कंजम्पशन कितना होना चाहिए? तो उसका डेली कैलोरी कंजम्पशन कितना होना चाहिए? अगर बंदा रूरल एरिया में रहता है तो उसका कैलोरी कंजम्पशन कितना होना चाहिए, और अगर बंदा अर्बन एरिया में रहता है तो उसका कैलोरी कंजम्पशन कितना होना चाहिए? आईसीएमआर ने बोला बस इतना ही। तो सुन, अगर कोई भी बंदा रूरल एरिया में रहता है तो उसका मिनिमम डेली कैलोरी कंजम्पशन 2400 कैलोरीज पर डे होना चाहिए, और अगर अर्बन एरिया में रहता है तो 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे होना चाहिए। इसी क्राइटेरिया को चेंज किया प्लानिंग कमीशन ने ही। इसी क्राइटेरिया को आगे चेंज किया प्लानिंग कमीशन ने ही, बाय कीपिंग इन द माइंड रेट्स ऑफ ईयर 1961 62 एज अ बेस रेट। और क्राइटेरिया ये दिया कि बंदा अगर रूरल एरिया में रहता है या अर्बन एरिया में रहता है। प्लानिंग कमीशन ने आगे जो कैलोरी कंजम्पशन वाला क्राइटेरिया था उसी क्राइटेरिया को आगे बढ़ाते हुए ये सर्च किया और ये बताया कि अगर बंदे को अपनी हर रोज की 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी है तो उसकी पर पीसीएम, अभी समझना, 20 रुपीज पर पीसीएम। अभी सर पर पीसीएम का मतलब क्या होता है? पर पी सी एम, सर व्हाट इज meant by per pcm? Per pcm means per person, per capita, per month। अगर कोई भी बंदा उसको अपनी बेसिक नीड ऑफ फूड सेटिस्फाई करनी है तो उसका पर पर्सन एवरेज मतलब पर कैपिटा पर मंथ इनकम या तो फिर एक्सपेंडिचर कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? 20 रुपीज पर पीसीएम। बंदा रूरल एरिया में रहता है या अर्बन एरिया में रहता है, कहीं पे भी रहता है, उसकी पर पीसीएम 20 रुपीज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए पर पीसीएम? 20 रुपीज। इसी क्राइटेरिया को आगे बढ़ाया प्लानिंग कमीशन ने ही अपॉइंट की दांडेकर एंड रथ कमिटी। प्लानिंग कमीशन ने एक कमिटी अपॉइंट की, दांडेकर एंड रथ नाम था उस कमिटी का। उस कमिटी ने सेम 1960-61 के रेट्स को ही ध्यान में लिया और क्राइटेरिया दिया कि 20 रुपीज तो कॉमन थोड़ी ना होना चाहिए। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में दोनों में प्रोडक्ट की प्राइसेस अलग अलग होती है, दोनों के खर्चे अलग अलग होते हैं। तो अगर बंदा रूरल एरिया में रहता है तो उसको पर पीसीएम, अभी मैं सीधा पीसीएम ही बोलूंगा, पर पर्सन पर कैपिटा पर मंथ, उसकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी 15 रुपीज होनी चाहिए। और बंदा अर्बन एरिया में रहता है
तो उसकी पर पीसीएम कितनी होनी चाहिए? उसकी पर पीसीएम होनी चाहिए 20 रुपीज। इसी बात को ध्यान में रख के इसी बात को ध्यान में रख के 1993 में और एक कमेटी अपॉइंट हुई। उस कमेटी का नाम था डीटी लाकड़ावाला। द नेम ऑफ द कमेटी वाज डीटी लाकड़ावाला। This committee took the rates of the year 1973-74 as a base year and gave a criteria that अगर बंदा रूरल एरिया में रहता है, अगर बंदा रूरल एरिया में रहता है और उसको खुद की फूड कंजम्पशन नीड सेटिस्फाई करनी है, अगर बंदा रूरल एरिया में रहता है और उसको अपनी फूड कंजम्पशन नीड सेटिस्फाई करनी है, तो उसकी पर पर्सन पर कैपिटा पर मंथ इनकम कैपेसिटी शुड बी 49 रुपीज पीसीएम। और अगर यही बंदा अर्बन एरिया में रहता है तो 57 रुपीज पीसीएम। बट 1993 तक ये एक बेसिक क्राइटेरिया चलता रहा, जिसके अंदर सारी की सारी जितनी भी कमिटीज आई उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन को ध्यान में लिया। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन को ही ध्यान में लिया कि अगर बंदा इतने भी पैसे नहीं कमाता मंथली तो वो खुद की कैलोरी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इन दिस सिनेरियो पर्सन विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। And if a person wants to satisfy his basic need of calorie consumption, then this criteria is okay. But बंदा सिर्फ और सिर्फ कैलोरी कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए नहीं जीता। उसकी बेसिक नीड्स में सिर्फ और सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन नहीं होता। Apart from calorie consumption, human being spends for education, health, housing, pure drinking water facility, and so many other things. So by keeping in the mind same thing, in the year 2009, another committee got appointed under the chairmanship of Professor सुरेश। आगे तो देखो, सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर की चेयरमैनशिप में कमेटी अपॉइंट हुई। ये कमेटी ने रिसर्च करना शुरू किया और इसी कमेटी ने 2011-12 के रेट्स को बेस ईयर रेट्स लिया। This committee took the rates of year 2011 and 12 and along with that food consumption expenditure, they included education and health. Education and healthcare facility also into mind, and they say that अगर बंदा रूरल एरिया में रहता है तो उसकी पर पीसीएम 860 होनी चाहिए, 816 होनी चाहिए। और अगर बंदा रूरल एरिया में रहता है तो उसकी पर पर्सन पर कैपिटा पर मंथ इनकम 816 रुपए से भी कम है, then he need to suffer the situation of poverty, and if that person is living in rural area then his per PCM should be 1000 rupees. And this is how the entire concept of poverty has kept on changing by the time, right? This is how this concept of poverty has changed according to the time.
Clear? Any doubt in this? Anyone having any kind of doubt in this? If you are having any kind of doubt, you can definitely ask to me. So take a screenshot of this, save this for your reference. This is the short note on the Indian criteria of poverty line. ये एक इंडियन क्राइटेरिया है that by the time प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके से खुद के पॉवर्टी लाइन के क्राइटेरिया में चेंजेस किए हैं, एंड दैट्स हाउ पॉवर्टी बिकम द रिलेटिव कॉन्सेप्ट. 1993 तक एक चीज याद रखो, क्या था 1993 तक? सिर्फ और सिर्फ फूड कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट को ही ध्यान में लेते थे. बट अपार्ट फ्रॉम द फूड कंजम्पशन, एज वी डिस्कस, there are so many other expenses, so many other things for which all the human being make the expenditure, right? And due to this reason, up to this year, up to the year 2009, since the Suresh Tendulkar committee, the criteria of poverty became only and only starvation line concept. अगर पर्सन की मंथली इनकम इससे भी कम होती थी तो वो बंदा पुअर है ऐसा कहा जाता. वो बंदा खुद की फूड कंजम्पशन फैसिलिटीज भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता ऐसा कहा जाता. दैट मीन्स इफ अ पर्सन्स इनकम वाज लेसर देन दिस अमाउंट, then he had to suffer the situation of starvation, and that's why up to the year 2009 the concept of poverty line remained limitation as a starvation line. That we have discussed earlier also. Clear? This is the Indian criteria. Apart from the Indian criteria, there is another criteria, international criteria. That if we want to calculate poverty at the international level, if we want to compare the poverty between the different countries, then what is the international criteria? So to give the international criteria, to make the comparison among different countries, at the international, one concept got developed, that is PPP, that is purchasing power parity. See, what is purchasing power parity? अलग अलग कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, अलग अलग करेंसी के हिसाब में वहां पर जो प्रोडक्ट्स होती है उसकी प्राइसेस अलग अलग होती है. बट ये सारी की सारी अलग अलग कंट्रीज की करेंसी को हम डॉलर में कन्वर्ट कर दे, एक लेवल पर ला दे, और उसके बाद हम उस कंट्री का परचेसिंग पावर कैलकुलेट करें तो उसको परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं. As per this concept, we have three criteria available depending upon the different times. Let us talk about the first criteria. At the international level, in the year 1990, if a person's income was less than $1 per PCD, यहां पर ध्यान रखना पर पर्सन, पर कैपिटा, पर डे. इंडियन क्राइटेरिया में पर पर्सन पर कैपिटा पर मंथ था, यहां पर पर्सन पर कैपिटा पर डे है. अगर इंसान की डेली इनकम $1 से भी कम है, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पुअर एज पर द इंटरनेशनल क्राइटेरिया. दिस क्राइटेरिया गॉट रिवाइज्ड
This criteria got revised when? This criteria got revised when? This criteria got revised again in the year 2005. And criteria of $1.25 came into existence. Same per PCD, per person, per capita, per day. Again, poverty is a relative concept. It changes according to time and situation. So, again, a new criteria was given when in the year 2015. What was that criteria? That criteria was $1.29 पर PCD. अगर इंसान की डेली इनकम आफ्टर ईयर 2015 1.29, इट्स 1.90 $1.90 से भी कम है तो उसको पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा एज पर द इंटरनेशनल. Right, this is the second point. After this, data with respect to poverty line or absolute poverty has been given in your textbook, right? Only data is given, you just need to read it, and smaller 3-4 line analysis has been given in that, right? That how many people were poor in rural area and how many percentage of people were poor in urban area. The criteria is given in that. Only data of 2 years has been given, 2 to 3 years has been given. You don't need to do much things. Very easy concept. But the topic after that is very important. The topic after that is very important. What is that? That is state-wise magnitude of poverty. इंडिया में स्टेट वाइज पॉवर्टी का सिनारियो क्या है? व्हाट इज द स्टेट वाइज सिनारियो ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? कौन से स्टेट में कितनी पॉवर्टी है? स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कौन से स्टेट में कितनी पॉवर्टी है. इसी क्राइटेरिया को मेजर करवाने के लिए कंट्री की पॉपुलेशन को, कंट्री की टोटल पॉवर्टी सिचुएशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से 4? 0% पॉवर्टी टू 10%. सेकेंड इज 10% पॉवर्टी टू 20%. 20% poverty to 30%, and last is 30% poverty to 40%. Right, these are the 4 criteria given. कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, कंट्री के जितने भी स्टेट्स है उस स्टेट्स के अंदर जितनी भी पॉवर्टी है उनके मैग्नीट्यूड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 0 to 10%, 10% to 20%, 20% to 30% एंड 30% to 40%. कौन से स्टेट की पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के अंडर जीती है, चारों का क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया है. मतलब कि मैक्सिमम 40% पॉवर्टी ऐसे कोई एक स्टेट में है जो एग्जिस्ट करती है. सबसे पहले बात करते हैं 0 to 10%. तो याद रखो, सबसे पहले हर एक को याद रखना पड़ेगा आपको, हर एक को अच्छे से याद रखना पड़ेगा. हर एक स्टेट्स के नाम आपको आने चाहिए, हर एक स्टेट्स के नाम आपको आने चाहिए, तो ही आपको ये एक्चुअल क्राइटेरिया पता चलेगा. तो इस स्टेट्स के नाम को याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, चारों के शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं. शॉर्ट फॉर्म्स क्या है देख लो. सबसे पहले 0 to 10% पॉवर्टी क्या है? 0 to 10%. तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आंध्र
people go to Sikkim and Punjab for hike. अभी सिर्फ इतना याद रखो, थोड़ा फनी होगा, पर अभी याद रखो, आंध्र पीपल गो टू सिक्किम एंड पंजाब फॉर हाइक. दीज आर द नेम ऑफ स्टेट. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट लेटर ऑन. ओके फाइन, चलो समझा ही देता हूं. सबसे पहला स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश. आफ्टर दैट गो से गोवा, सिक्किम, नाम ऑलरेडी दे दिया है, सिक्किम, फिर पंजाब, फिर हाइक में एच आई मीन्स हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और के से केरला. आंध्र पीपल गो टू सिक्किम एंड पंजाब फॉर हाइक. आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड केरला. After that, second is 10 to 20%. This is more funny. Raghu, J&K नामे त्रिपुरामा हता. What does this mean, sir? Raghu J&K नामे त्रिपुरामा हता. R means Rajasthan. Gu means Gujarat. J&K means Jammu and Kashmir. Everybody knows this. Na means Nagaland. Me means Meghalaya. Me means Meghalaya. Tripura. Ma means Maharashtra. HA means Haryana. TA means Tamil Nadu. Tamil Nadu. These are the states with 10 to 20% poverty. Third is 20 to 30%. Mika, वेस्ट बंगाल से 20 to 30% उत्तर देगा. Sir, what kind of short form is this? Me means Mizoram. Ka means Karnataka. West Bengal. Uttar Uttar Pradesh. And last is 20 to 30%. This is most funny. छत्तीसगढ़ में ओबामा जख मारे. छत्तीसगढ़ में ओबामा जख मारे. What does this mean? छत्तीसगढ़ में मणिपुर. छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? मणिपुर. ओबामा उड़ीसा. उड़ीसा, बिहार, असम, and Jharkhand. And last is MP, Madhya Pradesh. So this is how the state-wise magnitude of poverty is there. This is how the state-wise magnitude of poverty is there. If we compare all the data, then zero to 10%,
10 to 20%, and last is 20 to 30 and 30 to 40% पॉवर्टी. और हर एक के शॉर्ट फॉर्म है. Just take a screenshot of this so that you can save it for the future purpose. Whenever you want, you can just recall it. बाकी स्टेट्स के नाम तो आपको सब पता ही है. आई होप पता ही होंगे. This is the shortest and smartest way to remember the names of states. And if we talk about minimum poverty and maximum poverty, then Goa is the state having minimum population living under poverty line, and Chhattisgarh is the state living with the maximum poverty. This is the state-wise magnitude of poverty. And after that last concept is, second concept is relative poverty. Now here, relative poverty means if a country's population, जितने भी population है कंट्री में, सारी की सारी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं. किसमें? इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर इनकम. अगर मान लो कि हम कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसको उसकी इनकम के बेस पे डिवाइड कर देते हैं. मान लो कि सबसे पहला है ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, तीसरा है ग्रुप सी, चौथा है ग्रुप डी और पांचवा है ग्रुप ई. ग्रुप ए की इनकम है ईयरली इनकम ₹10 to 30,000. ग्रुप बी की इनकम है ₹30,000 to ₹1 lakh. ग्रुप सी की इनकम है ₹1 lakh and 1 to 3 lakh. डी की इनकम है ₹3 lakh and 1 to 5 lakh. एंड ई की इनकम है एंड मोर. एग्जाम्पल, राइट. तो यहां पर हम देखने के लिए जाए तो हमारे पास 5 अलग अलग इनकम ग्रुप है. राइट. ग्रुप ए बी सी डी ई. हियर द इनकम ऑफ ग्रुप ए इज लेस देन, here the income of group A is less than group B, C, D, E. That means group A is relatively poorer than group B, C, D and E. If we consider the income of group B, then it is lesser than group C, D, E. That means group B is relatively poorer than group C, D, E. Group C की इनकम group D और E से कम है. That means group C is relatively poorer than D and E, and group D की इनकम group E से कम है. That means group D is relatively poorer than group E. This is how relative poverty can be found. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.